شادی کرنے سے پہلے 50 جگہ انکوائری لیتے ہیں، اسی طرح قربانی کرنے سے پہلے بھی اس کے مسائل سیکھ کر معلوم کر کے قربانی ادا کرنا چاہیے۔ 10ویں دن کا عمل جو ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرماتے ہیں، اے نبی فصلی لربک، تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو، ونہر، اور قربانی کرو۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ واجب عمل ہے۔ لوگ اس کو کیا سمجھتے، یہ تو نفل عمل ہے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، اس طرح دماغ میں رہتا۔ یہ ہرگز ایسا دماغ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ قربانی واجب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اہتمام سے قربانی کیے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے بھی ہر سال اہتمام سے قربانی پیش کی ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ عمل چلتا رہا، لیکن شکل الگ تھی۔ وہ شکل کیا تھی؟ اگر کوئی بندہ قربانی دینا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے قربانی کا جانور لے جا کر بڑے پہاڑ پہ رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی اور وہ آگ اس قربانی کے جانور کو کھا کر ختم کر دیتی، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ اب تم پیسہ دے کر جانور خرید کر لے جا کر پہاڑ پہ رکھ کر اوپر سے آگ آئے گی، کھائے گی، ویسٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم پیسہ دے کر جو قربانی خریدتے ہیں وہ لا کر ذبح کرنے کے بعد وہ پورا گوشت تمہارا ہے۔ تم اس گوشت کو کھا سکتے، غریبوں میں تقسیم کر سکتے، یتیموں میں دے سکتے، تو اب تم خود اس استعمال کر سکتے ہیں یہ گوشت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اور مہربانی ہو گئی ہے ہم لوگوں پر، امت محمدیہ پر، کہ اب ہمارا پیسہ پہاڑ پر رکھ کر ویسٹ نہیں، ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ہمارے پیٹوں میں وہ قربانی کا گوشت جائے گا۔ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں جب قربانی کا موسم آئے گا تو کسی کے گھر میں کئی ہفتے گوشت نہیں ملتا، وہ لوگ بھی ان موسموں میں کوئی بکرے کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ نے کسی توفیق دی تو اونٹ کا گوشت پورے سال میں خریدنے کی توفیق بھی نہیں مل بھی نہیں رہا تھا، لیکن قربانی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت بھی وہ کھانے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے امت محمدیہ کے بندوں پر۔ تو ایک بات پہلے سمجھ لینا چاہیے، یہ قربانی واجب عمل ہے، بعض لوگ نفل سمجھتے ہیں، غلط بات ہے۔ اب لوگ ایک بات سمجھو، عید کی نماز میں جب یہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نیت بولتے؟ عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ تو یہی بات ہے، جیسے عید کی نماز واجب ہے ویسے ہی قربانی بھی واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا۔ فصلی لربک، تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو، ونہر، اور قربانی کرو۔ تو نماز واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، قربانی کا معنی ہے قربت حاصل کرنا۔ کس کی قربت؟ اللہ کی قربت۔ اور قربانی 3 قسم کے قربانی ہے۔ پہلی قربانی جان کی قربانی، دوسری قربانی مال کی قربانی، تیسری قربانی خواہشات کی قربانی۔ اب دیکھو جان کی قربانی کیسے ادا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ کے اور اسی طرح روزہ رکھ کے، نماز میں اٹھنا بیٹھنا چلنا، جسم مشقت میں ڈالنا، یہ جان کی قربانی ہے۔ روزہ رکھنا، دن بھر روزہ رکھنا، بھوکے رہنا، یہ سب جان کی قربانی میں آتا ہے۔ مال کی قربانی اپنے پیسوں سے زکوٰۃ نکالنا، حج ادا کرنا، پیسہ دے کر حج کو جانا، یہ سب مال کی قربانی۔ تیسری ہے خواہشات کی قربانی، وہ ہے اپنے نفس پر چاقو چلانا، یعنی شیطانی حملوں سے بچنا۔ آدمی چھری جانور پر تو چلا دیتا ہے، لیکن شیطانی وساوس پر
छुरी नहीं चला पाता। आदमी हज में जाकर शैतान पर पत्थर कंकरियां मार के तो आता है, लेकिन पूरी जिंदगी जब भी शैतान को पत्थर मारने की बात आती है तो उस मौके पर शैतान को अपना दोस्त बना लेकर गले में हाथ डालकर ये भी शैतान बनकर दोनों शैतानी काम करने निकल जाते हैं। तो तीसरी चीज है ख्वाहिशात की कुर्बानी, आदमी अपने ख्वाहिशात को भी कुर्बान करे। उसके बाद अब फजीलतें क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने वाले के बारे में फरमाया, जो बंदा कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उस जानवर को, जिस जानवर की कुर्बानी किया, कल कयामत के दिन वो जानवर ऊंट हो या बैल हो या और कोई जानवर हो, बकरा हो, उसके सींगों के साथ, उसके खुर के साथ, बालों के साथ आता है और अल्लाह ताला उसको एक मीजान में रखते, तोल में रखते और उसके हिसाब के बराबर नेकियां जमा करके इस बंदे को नेकियां अता करते। तो कुर्बानी करने का फायदा क्या हुआ? अल्लाह ताला क़यामत में हमको नेकियां अता करते हैं। उसके बाद कुर्बानी खुश दिली से अदा करना चाहिए। खुश दिली से अदा करने का क्या मतलब है? खुश दिली से कुर्बानी की बात आई तो खुशी खुशी से हिस्सा लेना, ये जानवर खरीदना। आदमी क्या है, ओकेशन में जाने के लिए पैसा है, घूमने फिरने के लिए पैसा है, फंक्शन वो हाल को जाने के लिए पैसा है, पिक्चर जाने के लिए पैसा है, हर बेटे के ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसा है, लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है तो 2000 में हिस्सा मिलता क्या, 2500 में हिस्सा मिलता क्या, इतनी महंगा हो गया क्या हिस्सा। इस तरह से कुर्बानी का एक अमल जो साल में एक मर्तबा देना है वो भी देते हुए रोते धोते देता है, जान निकल जाती है। जानवर की जान अभी गले पर छुरी नहीं चलती, उससे पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने वाले की जान निकल जाती है। ये आजकल इंसानों का माहौल बन गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बानी खुशी खुशी से करो और ये उम्मीद रख के करो अल्लाह ताला इस कुर्बानी के बदले में सवाब देगा, नेकियां देगा। तो फिर अल्लाह ताला उस जानवर की कुर्बानी के बदले में, जजा में अल्लाह ताला जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल देंगे। ये है कुर्बानी करने का सवाब। आदमी जन्नत में चले जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाते हैं, बेटी कुर्बानी की जगह पर आओ, देखो कि तुम्हारा कुर्बानी का जानवर कट रहा है और सुनो कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाती है और तुम्हारे तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इससे उलमा लिखते हैं गुनाह माफ होने की बात वो सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देते, और जो बड़े बड़े क्राइम में मुब्तला हैं, बड़े बड़े गुनाह में मुब्तला हैं, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते। वरना फिर क्या होता, पूरा साल चोरी करके, हराम खोरी करके, लोगों का माल हड़प कर वो ये समझ जाएगा बकरीद में कुर्बानी दे दूंगा, अल्लाह ताला पूरे गुनाह माफ कर देगा। लोगों का माल रिश्वत के जरिए से, सूद के जरिए से, जोड़ा जहेज के नाम पर लुटेरे जितने भी घूम रहे हैं वो सब लुटेरे ये समझेंगे बकरीद आएगी तो कुर्बानी दे देंगे, कुर्बानी करने पर अल्लाह ताला पूरे गुनाह माफ कर देंगे। तो क्या मालूम हुआ, छोटे गुनाह माफ होंगे, बड़े बड़े गुनाह जो हराम, जिना, शराब इतने बड़े गुनाह हैं वो गुनाह अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इससे एक सबक हमको लेना है, कुर्बानी के जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जब छुरी चलाते हैं तो कुर्बानी का जानवर भी अल्लाह के नाम पर कटने के लिए तैयार हो जाता है। और ये इंसान उस जानवर से भी बदतर हो गया है। एक जानवर जो अल्लाह का नाम लेने पर छुरी अपने गर्दन पर चलाने के लिए राजी हो गया, वही इंसान अल्लाह का खाते और पीते हुए अल्लाह के नाम पर न सूद छोड़ रहा है, न हराम छोड़ रहा है, न झूठ छोड़ रहा है, न बेनमाजीपन अपने अंदर से निकाल रहा है। तो कितनी बेगुज़रे की बात है, एक जानवर अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार है और ये एक मुसलमान ये है अल्लाह के लिए गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुर्बानी के फजाइल हैं, कुर्बानी की अहमियत है, और भी ज्यादा फजीलतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, और अल्लाह ताला कितना उसको सवाब अता करते हैं कुर्बानी के देने पर।
इसी तरह हिस्सा लेने पर भी ऐसा नहीं कि खाली बकरा लाकर काटे तो ही ये सवाब मिलेगा, या फिर ऊंट लाकर काटे तो ये सवाब मिलेगा, या फिर बैल लाकर काटे तो भी ये सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हिस्सा ले लेने पर भी कुर्बानी के जानवर में से उसको भी ये सवाब मिलेगा कि हर बाल के बदले में नेकी है, हर बाल के बदले में सवाब है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, बाल जानवरों के तो बाल नहीं होते, ऊन होती है, तो क्या ऊन के बदले में भी सवाब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, हर ऊन के बदले में भी अल्लाह ताला सवाब अता करेंगे। तो ये सारे फजीलतें और अहमियत इसलिए बयान की जाती है कि कोई भी आदमी मालदार होने के बावजूद, अपने जिम्मे में कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ रही है, अल्लाह के नबी सख्त धमकी दे रहे हैं ऐसे मालदार को, ऐसे वसअत रखने वाले को जो मालदारी के बावजूद, ताकत के बावजूद सुस्ती की वजह से या दिमाग खराब हो गया, कहीं को जानवर की जान लेना, ये पैसे गरीब को दे देंगे, हमारे घर में बेवा है उसकी शादी करवा देंगे, हमारे घर में काम करने वाली के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी फीस अदा कर देंगे, ऐसा समझकर कुर्बानी नहीं करेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे मुसलमान को ईदगाह को आने की इजाजत नहीं है। जिस तरह कोई बंदा, कोई औरत किसी से नाराज हो जाती तो क्या कहती, मेरी दहलीज भी नहीं खोलना, मेरे घर की तरफ तुम्हारी छांव भी नहीं पड़ना, जिस तरह गुस्से में आकर कहते हैं, इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्बानी नहीं करने वाला वाजिब होने के बावजूद वो हमारी ईदगाह को भी ना आए, हमारे मुसल्ला यानी ईदगाह को नमाज पढ़ने के लिए भी ना आए, इतनी सख्त धमकी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। इस वजह से कोई भी बंदा गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से, अब इतना सब कहाँ, पैसा महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, अब फिर जाके जानवर वो गांव को जाना, ये गांव को जाना, वहां से लाना, यहाँ से लाना, इस तरह समझकर कुर्बानी छोड़ेगा तो अल्लाह के सख्त वईद, अल्लाह के नबी के सख्त वईद में वो बंदा हो जाएगा। इस वास्ते हर वाजिब बंदा, साहिब निसाब बंदा अपने कुर्बानी अदा करना है। उसके बाद 10 से 15 मसाइल है, बहुत जरूरी बातें हैं, वो सुनाकर अपनी बात को खत्म कर ली जाएगी। पहली बात यह है, कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी उस पर वाजिब है जो मुसलमान है, जो आजाद है, जो मुकीम है, जो आकिल है, अक्लमंद है, पागल नहीं है, दीवाना नहीं है, अक्ल रखता है, और जो बालिग है, नाबालिग नहीं है, और जो साहिब निसाब है। इन तमाम के शराइत पाए जाने पर वो बंदा शरीयत की नजर में वाजिब बंदा हो जाएगा, यानी उसके वो साहिब निसाब हो जाएगा और उसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और साहिब निसाब होने के लिए क्या होना चाहिए? साहिब निसाब होने के वास्ते 612 ग्राम चांदी, 61 तोला 360 मिलीग्राम चांदी अगर किसी के पास है, वो मार्केट लेवल पैसा चेक किया जाए तो अब चांदी का रेट भी बढ़ गया, तो 1,80,000 के आसपास किसी के पास चांदी है, या फिर उतना कैश अवेलेबल है, अमाउंट मौजूद है, या फिर घर में झूमर लगा हुआ है 50,000 का, और एक एसी एक्स्ट्रा लगी हुई है, कभी डालते नहीं है, और ऐसा कुछ सामान है जो इस्तेमाल में नहीं हो रहा है, उन सामानों को भी अगर अमाउंट हिसाब लगाया जाए उसकी कीमत भी 1,80,000 के आसपास आ जा रही, तो उस पर बंदे पर भी कुर्बानी वाजिब है। मर्द अगर मालदार है, ताजिर है, उसके पास सामान तिजारत मौजूद है, दुकान में उतने बजट का अमाउंट और उतने बजट का सामान मौजूद है, तो मर्द पर कुर्बानी वाजिब है। औरत के पास सोना है, चांदी है और जेवरात है, तो औरत से अलग से कुर्बानी वाजिब है। बाज मर्तबा क्या समझते, शोहर कुर्बानी दे दिया तो काफी है। कुर्बानी शादी की तरह नहीं है, पहले बड़े भाई की शादी, बाद में दूसरे भाई की शादी, पहले बहन की शादी, बाद में छोटी बहन की शादी। कुर्बानी फर्ज नमाज जिस तरह पढ़ते हैं, ज़कात जिस तरह अदा करते हैं, वैसा हर बंदा अपनी अपनी कुर्बानी देना है। ऐसा किए बगैर पहले ये साल अम्मी की तरफ से कुर्बानी दे देंगे, दूसरे साल बाबा की तरफ से कुर्बानी दे देंगे, तीसरे साल नबी की तरफ से कुर्बानी देंगे,
ایسا سمجھ کر اپنی واجب قربانی اگر چھوڑ رہا ہے تو ویسا ہی ہوگا ایک آدمی کو سنت زیادہ معلوم ہو گئی تو پیجامہ نکال کر سر کو پگڑی بن لیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں. تو اس واسطے پہلے واجب ادا کرنا ہے. واجب قربانی ادا کرنے کے بعد پیسہ ہے مال ہے تو اب پورے محلے والوں کی طرف سے دو, پورے گھر والوں کی طرف سے دو, پورے کس کے نام سے دے سکتے, صحابہ کے نام سے, نبی کے نام سے, ہر کسی کے نام سے نفل قربانی دی جا سکتی ہے واجب قربانی ادا کرنے کے بعد. دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے کی جانے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ, جو تم قربانی کا جانور کٹ کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, نہ میرے پاس اس کا خون آتا ہے, نہ میرے پاس اس کا گوشت آتا ہے, میرے پاس کیا آتا, صرف تمہارے اندر کا تقوی آتا ہے. تم کس واسطے یہ جانور ذبح کیے, میرے لیے ذبح کیے یا محلے والوں کو دکھانے کے واسطے ذبح کیے؟ 40,000 کا بکرا لا کر ویڈیو اتار رہے ہیں, فوٹو لے رہے ہیں, انسٹاگرام پر اپلوڈ کر رہے ہیں, فیس بک پر اپلوڈ کر رہے ہیں, ریاکاری کے لیے, شہرت کے لیے, سوشل اور وائرل ہونے کے لیے, تو پھر وہ ثواب بالکل نہیں ملے گا. اللہ بھی یہی کہیں گے جس کے لیے قربانی کرا تھا اس سے جا کر ثواب مانگ لے, میرے لیے تو قربانی نہیں کیا تھا, اس واسطے میرے پاس اس قربانی کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو پہلا عمل ہے یہ قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے. دوسرا عمل یہ ہے, دوسرا کام یہ ہے وائرل ہونے کے لیے اور شہرت کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. تیسرا کام ہے قربانی کا جانور تو لا لیے اللہ کے لیے, لیکن راستے پر باندھ دیے, آنے جانے والوں کو سب کو تکلیف دے رہے ہیں, وہیں گوبر ہے, وہیں گھاس ہے, پوری گلی بلاک کر کے رکھے ہیں. یہ کرنا بھی ایذائے مسلم ہے, حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے والے صحابہ کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ راستے کے حقوق ادا کرو. تو پھر یہ بندہ قربانی ادا کرنے کے لیے اگر راستے کے حقوق کی پامالی کرے گا, دوسرے مسلمانوں کو, گلی میں غیر مسلم بھی رہتے, مسلمان بھی رہتے, بچے بھی رہتے, بچہ جا رہا ہے بیل مار دی, بچہ جا رہا ہے دوسرا کچھ حملہ ہو گیا, تو یہ سب مشکلات میں دوسرے مسلمانوں کو نہیں ڈالنا چاہیے. صاف صفائی کا اہتمام بھی کرنا اسلام کے شرائط میں سے ہے, پاکی آدھا ایمان ہے. تو قربانی کا جانور بھی اچھے جگہ باندھنا ہے اور پاکی صفائی کا, اس کو چارہ پانی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ چند کام ہے. اس کے بعد کچھ مسائل بھی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے زندگی میں کبھی قربانی نہیں کیے, اب اللہ نے مال دے دیا, صاحب نصاب بن گئے, تو اب وہ قربانی کا بکرا گھر لائے. اب وہ سمجھتے کہ پہلی قربانی مرحومین کے نام سے دینا, پہلی قربانی نبی کے نام سے دینا, جبکہ وہ بندہ خود مالدار ہے, صاحب نصاب ہے, اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. پھر بھی کیا کہتا ہے, ہمارے بڑے بولے ایسی بات, ہماری امی بول رہی ہے, بابا بول رہے ہیں, اس طرح کہہ کر اپنی واجب قربانی چھوڑ کر مرحومین کے نام سے یا نبی کے نام سے, ان کے نام سے قربانی دے کر اپنے ذمے کی واجب قربانی ادا کیے بغیر اگلے سال میرے نام سے کروں گا بول کر رہ جاتا ہے. ایسا بندہ اپنی واجب قربانی چھوڑنے کا گناہ میں پڑے گا اور وہ گنہگار ہوگا. اس واسطے چاہے پہلا بکرا لاؤ یا پھر تیسرا لاؤ, پہلے اپنی قربانی دے دینے کے بعد باقی اور مرحومین کے نام پر دے سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ, کوئی شخص گھر کا ذمہ دار ہے, جوائنٹ فیملی ہے, اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دوں گا. گھر میں 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے بھی صاحب نصاب ہیں, باپ باہر سے جانور لا کر قربانی بیٹوں کے نام سے دے رہا ہے, تو وہ ابو کو چاہیے کہ بچوں کو اجازت لیں, پرمیشن لے یا انفارمیشن کرے کہ میں تمہاری قربانی کا جانور میرے جانور میں دے رہا ہوں, یعنی تمہاری قربانی میں دے رہا ہوں. اتنی انفارمیشن دینا ضروری ہے. کیوں؟ اس کی وہ ذمے میں واجب ہے, اس کی قربانی وہ کرنا ہے, وہ نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم اسے اطلاع تو ملنی چاہیے کہ میری قربانی میں نہیں کر رہا ہوں, اپنے والد صاحب کر رہے ہیں. اگر اطلاع کے بغیر کوئی بندہ کر رہا ہے تو پھر اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی.
यानी जिस बंदे की वाजिब है, ऐसा भी होता है कि बाप मालदार है, बेटे कमाते हैं तो बेटे बाप की कुर्बानी कर देते हैं, बोलकर करना चाहिए, इजाजत और परमिशन या कम से कम इंफॉर्मेशन तो देकर करना है। अगर ये बंदा किसी के पास हिस्सा ले लिया, मेरे नाम से और हमारे बाबा के नाम से हिस्सा ले लिया और बाबा को मालूम भी नहीं है कि मेरी कुर्बानी हो रही है, हत्ता के बाबा के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो फिर 7 हिस्सों में से 5 हिस्से दूसरे लोगों के और 2 हिस्से इसके और इसके बाबा का हिस्सा, और बाबा को मालूम भी नहीं है कि इसका बाबा का हिस्सा दिया रहा है, तो ऐसे मौके पर उन 7 लोगों की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। तो इस वास्ते इंफॉर्मेशन देकर कुर्बानी करने से उस बंदे की भी कुर्बानी होगी और बाकी लोगों की भी कुर्बानी होगी। और दूसरा मसला, जो लोग कुर्बानी का जानवर देने का एहतमाम करते हैं या कुर्बानी में हिस्सा देने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपने हलाल पैसों से कुर्बानी करें। सूद में डूबा हुआ है, हराम खोर है, ऐसा बंदा आकर किसी इज्तिमाई कुर्बानी में अपना हिस्सा दे रहा है, बैच खुलाकर वो पैसे लाकर दे रहा है, तो ऐसा बंदा, एक बंदा शरीक हो गया, पूरे 7 हिस्से हैं, 6 लोग नेक लोग हैं, हलाल पैसा लेकर आए हैं, 7वां आदमी सूद पर लाकर कुर्बानी दे रहा है, उस एक आदमी की शिरकत की वजह से पूरे 7 लोगों की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इस वास्ते हलाल पैसों से कुर्बानी देने का एहतमाम करना चाहिए। ये सब मसाइल जानना चाहिए। उलमा की निगरानी में अगर कुर्बानी करेंगे तो सबकी कुर्बानी अदा होती। जैसे बारिश पड़ने पर वो तरह तरह के कीड़े निकलते हैं, इसी तरह बकरीद आने पर तरह तरह के लोग कमाने के लिए कोई दुकान लगा देता है, कोई पोस्टर बना देता है कि हमारे पास भी कुर्बानी है, हमारे पास भी कुर्बानी है। बल्कि 150 से ज्यादा मसाइल हैं इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले पर, जो वो मालूम करने के बाद इज्तिमाई कुर्बानी का निजाम चलाना चाहिए। लेकिन खसाब लोग वो शुरू कर लेते हैं, उनके पास भी लिखा हुआ रहता 3500 में हिस्सा मिल रहा है। एक मसला मालूम कर लेना चाहिए, अगर तुम्हारी वाजिब कुर्बानी तुम पर वाजिब है, तुम अगर किसी से हिस्सा ले रहे हैं, तो जिस जानवर में तुम्हारा हिस्सा है, ज़बा से पहले तुम्हारा नाम लेना है या फिर तुम्हारी नियत तो करना है। नियत नहीं करे, वहां पर जानवर कट कर रखा हुआ है, 7 हिस्से बना के रखे, एक आदमी दूसरे दिन या शाम में आया, आकर कहने लगा मुझे एक हिस्सा दे दो, और इज्तिमाई कुर्बानी वाला एक हिस्सा उठाकर दे दिया, तो अब इस वाजिब कुर्बानी जिस पर वाजिब थी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्योंकि जानवर के गले में कुर्बानी करते वक्त, जो ज़बा करते वक्त चाकू चलती है, चाकू चलने के टाइम पे 7 लोगों के नाम, इसका नाम भी शुमार होना है, शामिल रहना है, तब जाकर कुर्बानी अदा होगी। खाली जाकर दुकान से हिस्सा ले लेने से या किसी कांतवी जगह से जाकर हिस्सा ले लेने से वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। और भी दूसरी बात, चाकू चलाने वाला बिस्मिल्लाह पढ़कर चाकू चलाना है, और जो बंदा पकड़ता है वो अगर चाकू पर हाथ रख दिया, खसा हिंदू है या फिर मुसलमान है लेकिन गुटखा वगैरह खा रहा है, वो भी हाथ रख दिया, तो इसके हाथ रखने की वजह से अगर ये बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो पूरा जानवर ही हराम हो जाएगा, ना कुर्बानी होगी ना जानवर हलाल होगा। इस वजह से छुरी पर हाथ रखने वाले को चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़े। उसके बाद ज़बा सिर्फ 3 दिन करना है। बाज लोग अजीब लोग हैं, उनको कुछ काम ही नहीं रहता, रमजान आया तो लड़ने आ जाते 8 रकात 20 रकात, कुर्बानी का मौसम आया तो यहाँ भी आ जाते, 4 दिन 3 दिन नहीं 4 दिन कर सकते, और एक बकरा सारे घर वालों की तरफ से हो जाता। अजीब पागल किस्म के लोग हैं, एक बकरा एक आदमी की तरफ से होता और 7 हिस्से 7 लोगों की तरफ से होते। और एक मसला समझ लो, अगर कोई पागल आदमी इस नियत से आ रहा है, पूरे घर वालों की तरफ से एक वाजिब कुर्बानी अदा कर देने से हमारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। अगर ये बंदा हिस्सों में से 6 लोग मसलके अहनाफ में के हैं, यानी एक बंदा एक वाजिब कुर्बानी समझता है, और 7वां आदमी वो आया है जिसका दिमाग खराब है, वो ये समझ के आ रहा है मेरी बीवी पर भी वाजिब है कुर्बानी, मेरे पर भी वाजिब है कुर्बानी, मेरे बेटे पर भी वाजिब है कुर्बानी, इन तीनों की तरफ से एक हिस्सा काफी है, एक बकरा काफी है, ऐसा समझकर
6 हिस्से हमारे लोगों के हैं, 1 हिस्सा पड़ोसी वाले का है, तो फिर अगर ये बंदा शामिल हो जाएगा तो अब वो 7 हिस्से नहीं रहे बल्कि 9-10 हिस्से बन जाएंगे मानवीय एतबार से। तो उस बंदे की शिरकत की वजह से किसी की भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो इस वास्ते इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों को ऐसे पड़ोसियों के कुर्बानी भी नहीं लेने हैं। अगर लेना है तो पहले मसला बताकर बाद में कुर्बानी लेना है, वरना पैसों की लालच की वजह से अपने अच्छे लोगों की कुर्बानियां भी खराब और जाये हो जाते हैं। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका मालूम करना बहुत जरूरी है। मालूम किए बगैर अगर कोई बंदा कुर्बानी कर रहा है, एक बात यह है, कुर्बानी में हिस्सा लेने वाले की नियत वो कबाब बनाने की, खाली गोश्त हासिल करने की नियत ना हो, बल्कि कुर्बानी की नियत हो। और हकीके की नियत से भी गोश्त लिया जा सकता है। कोई बंदा कुर्बानी की नियत से नहीं बल्कि हकीके की नियत से हिस्से ले रहा है तो उसका शिरकत करना भी दुरुस्त है, जायज है, कोई बिला कराहत ले सकता है। उसके अलावा कोई बंदा सिर्फ गोश्त के लिए ले रहा है, कुर्बानी की उसकी कोई नियत नहीं है, तो ऐसे बंदे की शिरकत की वजह से दीगर लोगों की भी कुर्बानी नहीं होगी। और भी बहुत बारीक बारीक मसाइल हैं, वक्त बहुत कम रहता है, ज्यादा मसाइल बयान नहीं किए जाते। यहाँ असर के बाद भी मसाइल बोले जाते हैं। अल्लाह के बंदों से गुजारिश है, एक फ्रिज लेने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, शादी करने से पहले 50 जगह इंक्वायरी लेते हैं, इसी तरह कुर्बानी करने से पहले भी उसकी मसाइल सीख कर मालूम करके कुर्बानी अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के कुर्बानियों को कबूल फरमाए, इंसानों के अंदर इल्म हासिल करने का शौक और मसाइल सीखने का, मालूम करने का जज्बा अता फरमाए, सुनी गई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।